Today we will start contraception. See why it is called contraception. Contraception is the word which is whenever we want to conceive. Okay, then at that time it is called conception. Then it is called conception. But if you don't want to conceive, then it is called contraception. Then it is called contraception. Contraception, you don't want to conceive. Okay, so whenever you don't want to conceive, what we can do? Okay, we can just use some safe or natural method, or we can use some chemicals method, or we can use oral contraceptive pills or some surgical method. Okay, so it depends upon which method is best suitable for us. Okay, so this is all about the introductory part. So now today we will start first with the contraception. So contraception is the opposite word for conception. Conception means to conceive the baby or to conceive that is called the birth. Okay, that is called conception. Okay, and now we are using the word contraception. So there are so many contraceptive methods. Okay, so first, most important, it is the birth control method. So this contraception is the birth control method, and what are the best things we can see in case of the birth control method? Okay, if you want that method should be ideal, what should be there in that particular method? So the method should be user friendly. Okay, so when those who are using this method, any method, there are so many methods starting from avoiding using chemicals or mechanical barrier or surgical, but that should be user friendly. Okay, user friendly and easy to use, and it should be easy to use. Second important point, there should be no side effect. There should be no side effect. Third is it should be reversible. It should be reversible. Okay, because the married couple, they want the contraception for particular period of the time until their settlement, and once they settle, okay, they can like go for the baby. Okay, so that is why whatever the method they are using, it should be reversible. Okay, it should be reversible is very, very important. And it's whatever the method is, it is like almost 100% effective और कंप्लीट इफेक्टिव. ऐसा नहीं कि 50% चांसेस है कि हो सकता है कंसीव, 50% नहीं, तो ऐसा रिस्क कौन लेगा, राइट? सो इट शुड बी 100% कंप्लीटली इफेक्टिव अगेंस्ट प्रेगनेंसी. अगेंस्ट प्रेगनेंसी, यही तो है, प्रेगनेंसी नहीं चाहिए. दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग दिस बर्थ कंट्रोल मेथड दैट इज कॉल्ड द कॉन्ट्रासेप्शन. ओके, सो दीज आर द ideal 4 thing you are going to see in case of the contraceptive methods. So ये हो गए आपके contraceptive method में क्या क्या आपको देखना है. सबसे पहले ये मेथड यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए. देयर शुड बी नो साइड इफेक्ट, रिवर्सिबल होनी चाहिए एंड 100% इफेक्टिव होनी चाहिए. नाउ व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ मेथड? Natural method first we will discuss. Okay, what is a natural method of contraception? The first in natural method is the safe period. Okay, so before going for any method, we should discuss, okay, menstrual cycle and conception, right? So 28 days is the ideal calculative days for the menstrual cycle. First 3 to 5 days, 1, 2, 3, 4, 5, 3 to 5 days, it is for menses. Okay, it is for the menses, and after that, okay, 12 to 14 days is post menstrual phase. Then after 14 days there is a ovulatory phase, and then this ovulatory phase is for 24 to 48 hours only. Okay, and after ovulatory phase, the remaining days they are post ovulatory phase, or you can say secretory phase. इनके बहुत सारे नाम है, like menstrual phase, this is a post menstrual, or you can say that is called follicular
phase, right? So these are the name given in the menstrual cycle. So this first 4 period, they are the bleeding one. During this is the female reproductive tract. This is the ampulla, isthmus and uterine part, and this is the uterus. Here there is the ovary. Inside the ovary there are follicles. These follicles are primary follicle, then it is developed into the secondary follicle, tertiary, and I will just draw this one, that is the mature follicle. That is the mature follicle, and that is called Graafian follicle. At the 14th day, what happened? There is a ovulation, and this ova release in the fallopian tube, which is took by this finger-like projection, that is called the fimbriae. So this is called ovulation. कब होता है ovulation? 14th day. अगर 28 day की cycle हो तो approximately that is on the 14th day. Before the ovulation, what is this one? Like post-menstrual, or you can say follicular phase. In this follicular phase, this follicle, primary follicle, which is converted into, that is called mature follicle, right? So यहाँ ये होता. At the same time, there is a development of the endometrial bed for implantation. Endometrial bed for, अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो बेड रेडी चाहिए ना यहाँ पर एंडोमेट्रियम यूट्रस में. सो एंडोमेट्रियल बेड शुड बी रेडी. सो दैट इज ड्यूरिंग दिस फॉलिकुलर फेज. सो जैसे ही मेंस्ट्रुएशन के वक्त क्या हो जाएगा, ये बेड निकल जाएगा बाहर अलोंग विद द अनफर्टिलाइज ओहम, या जिसको हम लोग बोलेंगे एग्स, बाहर निकल जाएगा. और इसका जो ये मेंस्ट्रुअल पीरियड में ये चला गया मेंसेस में क्या क्या चला जाएगा? अनफर्टिलाइज एग्स, 20 to 50 ml of blood, and this immature endometrial bed plus some mucus secretion or plus some secretory plug. तो ये सब चला जाएगा, राइट. सो यूट्रस इज सप्लाइड बाय द ब्लड वेसल. सो जैसे ये जाएगा तो ब्लड वेसल ब्लीडिंग करेंगे. तो ये हो गया मेन. अब इसका रिपेयर होना, और एट द सेम टाइम देयर इज अ formation of the, or there is a maturation of primary follicle into the, that is called Graafian follicle. Here we require follicle stimulating hormone, and this follicular cell also secrete estrogen, so ये जो follicle stimulating hormone है और ये estrogen है, क्या करते हैं? Maturation of follicle and the formation of the bed. Okay, now when the follicle is fully mature, that is called Graafian follicle, at that time luteinizing hormone, okay, luteinizing hormone increase हो जाएगा. जैसे ही luteinizing hormone increase हो जाएगा, अभी तो follicle mature हो गया, तो follicle stimulating hormone का level कम हो जाएगा और luteinizing का बढ़ जाएगा. luteinizing hormone, the LH इंक्रीज हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का जो सडन इंक्रीज है, दैट कॉजेस रप्चर ऑफ दिस ग्राफिन फॉलिकल एंड देयर इज अ ओवुलेशन. सो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करेगा? ओवुलेशन करेगा. एट द सेम टाइम दिस ग्राफिन फॉलिकल, जिसमें से अभी ओवा चला गया और अभी ये खाली हो गया, राइट, देयर इज नो ओवा हियर. नाउ इट इज कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम. धीरे धीरे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल कम हो जाएगा, और जैसे ही ओवुलेशन हो जाएगा, देयर इज अ सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन का सिक्रीशन इंक्रीज हो जाएगा. दिस प्रोजेस्ट्रॉन विच इज सिक्रेटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा? ये यूट्राइन एंडोमेट्रियल बेड का वापस थिकनिंग करेगा और रेडी फॉर इम्प्लांटेशन करेगा, राइट, फॉर अप टू 14 days. And then after ovulation, 14 days में, if there is a fertilization, then there is a formation of zygote, and that zygote converted into morula, blastula, and here there is a implantation. अगर नहीं हुआ, if there, और ये कब होगा? सब ये पोस्ट ओवुलेटरी पीरियड में, सिक्रेटरी पीरियड में ये पूरे सिक्रीशंस हो गए. यहाँ पर यूट्राइन न्यूट्रिशियस मिल्क तैयार होगा, जो इम्प्लांटेशन के बाद क्या करेगा? उस डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट देगा. लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ इन बिटवीन दिस ऑन दिस 14 डे, तो धीरे धीरे इसके बाद क्या हो जाएगा? द लेवल ऑफ आफ्टर 14 days प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल वापस कम हो जाएगा. कॉर्पस ल्यूटियम कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस अल्बिकन्स, एंड देन अगेन देयर इज अ मेंस्ट्रुअल फ्लो. ये पूरा जो बेड तैयार हो गया था, वो ये बेड बाहर चला जाएगा.
हमें क्या करना है इन नेचुरल मेथड और दैट इज इन सेफ पीरियड, वी ऑलरेडी नो कि ओवुलेशन कब है, 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. सो ये जो 14th डे है आउट ऑफ लाइक 28 डेज हम लोगों ने नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इसके 2 दिन पहले और 2 दिन बाद वी शुड अवॉइड द सेक्सुअल practices, so that naturally without using any tablet or without using any barrier, okay, there is a लेस चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी, क्योंकि ओवुलेशन अगर होगा और तभी फर्टिलाइजेशन होगा. हम लोगों ने अगर, और इसका सर्वाइवल ओहा का यहाँ पर कितना है, ओनली फॉर 24 to 48 आवर्स. सो यही हमें अवॉइड करना है. दिस इज द सेफ पीरियड. बट द प्रॉब्लम इज दैट इन रियल वर्ल्ड 28 डेज इज नॉट अ फिक्स साइकिल. कभी कभी ये 26 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है, 27 भी हो सकती है. सो वी डोंट रियली कैलकुलेट द पर्टिकुलर, दैट इज कॉल्ड द सेफ पीरियड. और क्या होता है सेफ पीरियड में, इंक्रीजिंग बॉडी टेम्परेचर. तब जब ओवुलेशन होगा एट दैट टाइम इफ यू मेजर द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, ओके, सो देयर इज अ स्लाइट इंक्रीज इन द टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर के 1 or 2 degree फ़ारेनहाइट. देन at the day of that is called ovulation, the consistency of cervical mucus थोड़ी कैसी हो जाती, slippery और sticky. So if they feel the cervical mucus with the help of finger, the mucus is thread-like. Mucus is thread-like, and that thread-like consistency, if they exam, okay, and that is seen on which day, 14 day, जिसको हम लोग बोलते हैं Spin-Barkey test. Okay, ये टेस्ट अगर सर्वाइकल म्यूकस कंसिस्टेंसी के लिए. ओके, सो दीज आर द मेथड. ओके, ये नेचुरल मेथड है. दूसरी एक नेचुरल मेथड है विड्रॉल मेथड. विड्रॉल मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाइटस interruptus. So during the withdrawal method, okay, at the time of copulation, when, okay, they feel there should be a ejaculation or injection of the sperm inside the female reproductive sac, at that time they should interrupt the copulation, act of copulation, or withdraw the male external genitalia. But the chances of pregnancy is here also more and here also more, right? And then there is one more that is called lactational amenorrhea. What is lactational amenorrhea? In lactational amenorrhea, after the pregnancy, whenever the mother is during the lactational period, the level of your that is called progesterone is more, and that inhibit the folliculogenesis, and there is no ovulation, and that is why there is a less chances of pregnancy. But lactational amenorrhea, it is not more than 3 to 6 months. So that is also one of the natural method, but natural method are not really the effective method. Okay. Now there are mechanical method. What are the mechanical, or you can say barrier method? Mechanical and barrier method, okay, they are using the rubber or latex made condoms like male condom, female condom. Female condom को हम लोग क्या बोलते हैं, fern shield. Okay, so male condom है, female condom that is called fern shield. Vaginal vault है, right? Diaphragm, which is used by the female, or cervical cap. Okay, these are all the mechanical barrier. तो ये हो गए mechanical barrier. So what are the natural method, what are the mechanical barrier? Okay, now there is one more method that is called intrauterine devices, जिसको हम लोग बोलते हैं IUD. It is commonly used and effective method. It is commonly used and most effective method in a Indian female. And this intrauterine devices, they are insert into the uterus. Okay, so it's not like कि daily लेना है तुम्हें कोई टैबलेट और नेचुरल या कोई चांसेस है प्रेगनेंसी के. दे आर लाइक नॉन मेडिकेटेड भी है, नॉन मेडिकेटेड लाइक लिपेज लूप. ओके, नॉन मेडिकेटेड है. कुछ इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस कॉपर रिलीजिंग है. व्हाट इज द एक्शन ऑफ दिस कॉपर? ओके, कॉपर आयन क्या करते हैं, स्पर्म जो एंटर होते हैं उनकी मोटिलिटी और फर्टिलिटी डिक्रीज कर देते हैं, कॉपर आयन. सो कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस. कुछ हार्मोन रिलीजिंग रहते हैं इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस. हार्मोन रिलीजिंग कौन से? दे हैव द लाइक प्रोजेस्टेरॉन, लेवोनॉर्गोस्टेरॉल, प्रोजेस्ट्रैट, LNG,
20, that is 20 is the dose of that levonorgestrel. So ये हो गया हार्मोन रिलीजिंग. ओके, कॉपर है, कॉपर टी है, कॉपर एल है, मल्टी लोड 375 है. सो दीज ऑल आर बेसिकली इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस. इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? रिड्यूस मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म. ओके, एंड द सर्विक्स, दिस सर्विक्स which is present, it become hostile to the sperm. What is meant by hostile? The environment for the sperm in cervix is not good. Okay, the sperm already जो billions of sperm है, because of the acidity in case of that is called the vagina, they will die. Or vaginal epithelial cell, they act as a some cell they act as a phagocytic action, तो वो sperm को kill कर लेंगे. Only 100 of the sperm will remain, and that sperm enter into the female, that is called reproductive tract, that is the fallopian tube, and here there is a fertilization. But that is not our part. Our part is today what we can use for the contraception. और chemicals use कर सकते हैं, like jellies, spermicidal jellies we can use, right? So that kill the sperm. Spermicidal jellies और ये chemicals में रहता क्या है basically? इसमें lactic acid रहेगा, right? बोरिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, राइट? सो दीज आर द केमिकल विच इज प्रेजेंट इन द केमिकल जेलीज, क्रीम एंड फोम टैबलेट आल्सो, राइट? सो दे हैव लैक्टिक एसिड, बोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, दैट इज कॉल्ड जिंक सल्फेट. क्योंकि कुछ भी केमिकल हम लोग यूज नहीं कर सकते ना, दैट माइट हैव एडवर्स इफेक्ट. और दीज आर द केमिकल कॉन्ट्रासेप्शन. तो ये हो गए केमिकल कॉन्ट्रासेप्शन. ओके, सो नेचुरल मेथड हो गए, केमिकल्स भी हो गए, मैकेनिकल और बैरियर मेथड भी हो गए, राइट? और कोई मेथड है, राइट? एनी अदर मेथड? हार्मोनल मेथड. ओके, नाउ वी विल कम टू आवर मेन मेथड, दैट इज कॉल्ड द कॉन्ट्रासेप्टिव हार्मोनल मेथड. नाउ द हार्मोनल मेथड, ये जो हार्मोनल मेथड है, इस हार्मोनल मेथड में दो है. वन इज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एंड सेकेंड इज कॉल्ड इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स. ओके, जिनको हम लोग डिपॉट प्रिपरेशन बोलते हैं. ओके, दैट इज कॉल्ड डिपॉट प्रिपरेशन. ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल एंड इंजेक्टेबल, दैट इज कॉल्ड डिपॉट प्रिपरेशन. दैट इज द इंजेक्शन, एंड वी कैन डिपॉजिट लाइक covered with silicone. Okay, so this is the drug. डिपॉट प्रिपरेशन में सबक्यूटेनस हम लोग जो डालते हैं, सिलिकॉन के इम्प्लांट्स बनाते हैं. ये है सिलिकॉन इम्प्लांट, और उस सिलिकॉन इम्प्लांट के अंदर क्या रहेगा? दैट इज कॉल्ड केमिकल रहेगा, दैट इज हार्मोन रहेगा, जो स्लो एंड स्टेडी रिलीज करेगा, राइट? एंड दिस इज द इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव. इंजेक्शन भी हो सकते हैं, या दैट इज कॉल्ड सबक्यूटेनस इम्प्लांट भी हो सकते हैं, राइट? सो इंजेक्शन एंड सबक्यूटेनस इम्प्लांट. बट कॉमनली यूज इज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव. ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में कौन से टाइप है, राइट? एक है कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ओके, जिसमें कौन से? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन दोनों रहेंगे यूज हार्मोन, राइट? ये हो गए कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स. एंड सेकेंड इज प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स, पॉप पिल्स बोलते हैं, जिसमें सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन रहेगा, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स. सो दीज आर कॉल्ड योर विच वन? हार्मोनल मेथड, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एंड इंजेक्टेबल. Okay, that is called the contraception, right? So sometime there are some new, that is called silicone, vaginal silicone ring releasing estrogen. हम लोग वजाइना में सिलिकॉन रिंग इम्प्लांट कर सकते हैं, राइट? सो दैट कम्स अंडर द इम्प्लांटेशन. सो ये हो गए आपके हार्मोनल मेथड में. एंड देन आफ्टर दिस हार्मोनल मेथड, जो मोस्ट कॉमन मेथड है आफ्टर इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, सर्जिकल मेथड भी है फॉर कॉन्ट्रासेप्शन. सर्जिकल मेथड में लैप्रोस्कोपिक, here we are using the laparoscope. Okay, you don't have to cut the abdomen to visualize the ovary and fallopian tube for the ligation and cutting. Here there is a small opening and reduce the chances of scarring. जो cut होगा उसका scar नहीं दिखेगा, right? बहुत छोटे छोटे scope के लिए opening है. Just so this is like one scope. एक छोटे से इंसिजन में से डालेंगे. दूसरा स्कोप है जो मेंटेन करेगा अंदर का पूरा एनवायरनमेंट, और तीसरे स्कोप में से आप इंस्ट्रूमेंटेशन कर सकते हैं. दिस इज द लैप्रोस्कोपिक मेथड, ओके, ऑफ स्टरलाइजेशन. दैट इज कॉल्ड ट्यूबल लाइगेशन. क्या करते हैं हम लोग? ट्यूबल लाइगेशन, राइट? ट्यूबेक
ट्यूबेक्टॉमी जिसको बोलते हैं, फीमेल में, और मेल में वैसेक्टॉमी। ट्यूबेक्टॉमी क्यों? क्योंकि ये जो फैलोपियन ट्यूब है इसको कट करके क्लैम्प कर देंगे। डिस्टेंस ज्यादा रखना है, राइट? इट इज लाइक मोर देन 3 सेंटीमीटर, सो दैट रिकैनलाइजेशन नहीं होना चाहिए, राइट? बोथ साइड का करना है, राइट? सो ट्यूबेक्टॉमी इन फीमेल एंड वैसेक्टॉमी, ओके, वास डिफरेंस को स्क्रोटम में कट एंड लाइगेट करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बाइलेटरल, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड वैसेक्टॉमी, राइट? सो दिस इज द सर्जिकल मेथड, दैट इज द लैप्रोस्कोपिक मेथड से हम लोग करते हैं ट्यूबल लाइगेशन, ट्यूबेक्टॉमी, एंड एक्सटर्नल अप्रोच से करेंगे वैसेक्टॉमी। क्यों लैप्रोस्कोपिक मेथड फीमेल में यूज करते हैं, मेल में नहीं? बिकॉज वास डिफरेंस इट इज आउटसाइड द एब्डोमेन, राइट? एब्डोमेन के बाहर है, दैट इज इन द स्क्रोटम, क्योंकि in case of male the testes are present outside the abdomen, because maturation and for spermatogenesis the temperature requirement is 2 degree to 3 degree Celsius lesser than normal temperature। तो वो temperature maintain करने के लिए naturally because the testes will be outside the abdomen, तो abdomen के अंदर जाना ही नहीं है, you don't have to use the laparoscope। So surgical method में laparoscopic only for the female, right? Nowadays people are using some immunological method, okay, but they are on इम्यूनोलॉजिकल कुछ मेथड है, बट वो अभी रिसेंट है, इन्वेस्टिगेशन की स्टेज में। दीज आर द इम्यूनोलॉजिकल मेथड, सो वी डोंट वरी अबाउट दैट मेथड। आवर मेथड हियर इज दैट इज कॉल्ड हार्मोनल मेथड, ओके? मेल कॉन्ट्रासेप्शन वी ऑलरेडी डिस्कस, ओके? मेल कैन यूज द मेल बैरियर, दैट इज अ कॉन्डम, सेफ पीरियड, और दे कैन परफॉर्म द सर्जिकल वैसेक्टॉमी। मेल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ओके, along with that androgen, male contraceptive pills with androgen रहेगा in that pills, cotton seed oil भी अभी उसका, these are investigative thing। अभी male contraceptive pills में androgen और cotton seed oil यूज करना उन्होंने देखना है या स्टडी कर रहे हैं उसके बारे में। कॉमन यूज इज फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ओके? सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन, दैट इज कॉल्ड मेल कॉन्ट्रासेप्टिव एंड फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव। अभी हम लोग देखते हैं दिस वन, ओके, जहां पर मेडिसिन्स रहेंगे, हार्मोन, दैट इज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में दो है, एक कंबाइन है और दूसरे प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स। फर्स्ट वी विल स्टार्ट COC, दैट इज कंबाइन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ये हो गया फर्स्ट। सो कब इंट्रोड्यूस किया था? 1960 ड्यूरिंग फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में, ओके? देयर आर 2 टाइप ऑफ हार्मोन यूज हियर, कंबाइन में एस्ट्रोजन एंड progesterone, okay? Estrogen and progesterone, okay? Which 2 type of estrogen we are using in this pill? That is one, the most important is ethinyl estradiol, ethinyl estradiol, okay? ये है estrogen, right? And second is mestranol, okay? Ethinyl estradiol and mestranol, okay? These are the 2 estrogen, okay? These are the 2 estrogen, okay? So एक हो गया ethinyl estradiol and second is mestranol, okay? So this mestranol is converted again into ethinyl estradiol when enter inside the body, यानी estrogen एक ही है, that is which one? ethinyl estradiol। कौन से 2 टाइप्स में मैंने कौन सा बोला था? वन इज कॉल्ड इथिनिल एस्ट्रेडियोल एंड सेकंड इज दैट इज कॉल्ड मेस्ट्रेनॉल, बट दिस मेस्ट्रेनॉल इज अगेन कन्वर्टेड इनटू इथिनिल एस्ट्रेडियोल व्हेन एंटर इनसाइड द बॉडी, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन, दैट इज कॉल्ड एस्ट्रोजन। कौन सा हम लोग यूज करते हैं इन केस ऑफ द कंबाइन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल? सो ये हो गया आपका एस्ट्रोजन, राइट? नाउ द प्रोजेस्टेरॉन, कौन सा प्रोजेस्टेरॉन? और यू कैन से प्रोजेस्टिन, okay? In combined oral contraceptive pill, progesterone, okay, the most important is norethindrone, norethindrone, okay? In progesterone, so it is, that is called norethindrone, okay? ये हो गया तुम्हारा प्रोजेस्टेरॉन या levonorgestrel, और यू कैन से levonorgestrel, desgosterol, norgosterol, ये हो गया आपके, दैट इज कॉल्ड प्रोजेस्टेरॉन, ओके? प्रोजेस्टेरॉन, they are more potent, these are more potent, levonorgestrel, they are more potent, okay? There is one more that is called desgosterol. Now as per the progesterone,
these are first generation, second generation and third generation contraceptive pills as per the progesterone. एस्ट्रोजन तो एक ही है, इथेनिल एस्ट्रेडियोल. दूसरा जो है इट इज अगेन कन्वर्टेड इनटू इथेनिल एस्ट्रेडियोल. ये प्रोजेस्ट्रॉन का फर्स्ट जनरेशन में क्या है, दैट इज कॉल्ड द प्रोजेस्ट्रिन. Second generation levonorgestrel and third generation that is called desgosterol. Third generation that is called the desgosterol, or you can say desgostrel. Okay, so these are like first generation, second generation. प्रोजेस्ट्रॉन में कौन सा यूज करते हैं? द कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, दे आर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जनरेशन, which depend upon which type of progesterone we use in combination. If we use the progestin, then it is the first generation. If we use the levonorgestrel, second generation. If we use the desgosterol, or that is called the desgostrel, okay, then it is the third generation oral contraceptive pills. Okay, so there are certain newer progesterone. Okay, ये जो desgostrel है, these are the newer progesterone. और newer progesterone में एक है, that is norgestimate. Okay, there is a new one more that is called norgestimate. These are the newer. Okay, these are the norgestimate or desgostrel. These are the newer progesterone. This newer progesterone, why नए नए डेवलपमेंट हो गए फर्स्ट जनरेशन से लेके थर्ड जनरेशन. ये जनरेशन क्या है, बेसिकली फर्स्ट जनरेशन यानी पहली बार जो हम लोग यूज करते हैं, फिर उसके हमें साइड इफेक्ट दिखते हैं कुछ, राइट, फिर हम लोग दूसरा कॉम्बिनेशन उसमें ऐड करते हैं, उसका केमिकल स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं साइड इफेक्ट कम करने के लिए, वो सेकंड जनरेशन हो गया और इंप्रूव्ड वर्जन आएगा. तो इसी तरह से ये थर्ड जनरेशन इज द मोस्ट इंप्रूव्ड, दैट इज कॉल्ड द जनरेशन. क्या होता है, थर्ड जनरेशन प्रोजेस्टेरोन अगर यूज किया, दे हैव लिटिल और नो एंड्रोजेनिक एक्टिविटी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन में थोड़ी एंड्रोजेनिक एक्टिविटी या एंड्रोजेनिक इफेक्ट दिखते हैं, बस इन थर्ड जनरेशन दैट इज बाय यूजिंग डेस्गोस्टेरॉल और डेस्गोस्ट्रेल और नॉर्जेस्टिमेट में आपको एंड्रोजेनिक एक्टिविटी बहुत कम दिखेगी या नहीं दिखेगी, राइट. सो डोज, व्हाट आर द डोजेस? What are the dose in case of combined oral contraceptive pills? Okay, and regime जिसको हम लोग डोज बोलेंगे, इसमें एस्ट्रोजन in case of combined pill, estrogen is 20 to 30 microgram per day. ये हो गया किसका, एस्ट्रोजन का डोज. ओके, एंड प्रोजेस्टेरोन यू कैन गो 50 to like 100 microgram per day. So these are the doses of estrogen and progesterone in case of combined oral contraceptive pills. But progesterone doses, you cannot write this progesterone doses because you can use progestin or levonorgestrel or desgostrel or norgestimate. So that is why estrogen का सेम रहेगा 20 to 30 microgram per day, right? Why? कंबाइंड में क्या है, आपको बेटर साइकिल अगर आपको कंट्रोल करना है, मेंस्ट्रुअल जो ओवुलेशन है, सो एस्ट्रोजन डोजेस हाई करना है, राइट. इफ यू इंक्रीज द एस्ट्रोजन डोजेस, efficacy will be more. Okay, so this is very important in case of combined oral contraceptive pills. How we will take it, regime कैसे हम लोग बोलते हैं, कैसे लेते हैं, राइट. सो 3 weeks लेना है. कितने वीक्स ये लेना है कॉम्बिनेशन? 3 weeks कॉम्बिनेशन प्लस 1 week का गैप, 1 week ऑफ द गैप. ये गैप कब लेना है? जब मेंस्ट्रुएशन हो, राइट. सो इफ यू रिमेंबर द 28 day साइकिल, जो 4 दिन पहले मेंस्ट्रुएशन रहेगा, तो ये वीक में आपको ये टैबलेट्स, ये कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं लेनी है. उसके जगह आपको वो वीक छोड़कर नेक्स्ट 3 week में आपको क्या करना है, ये पर्टिकुलर डोजेज लेने. सो दिस इज अबाउट हाउ वी विल टेक द कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स. तो ये हो गए डोजेज ऑफ कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल. सो फिक्स डोज किसका है? एस्ट्रोजन का है, राइट. एंड देयर आर सो मेनी फॉर्मुलेशन आपको मिलते हैं, लाइक मोनोफेजिक फॉर्मुलेशन, बाइफेजिक, ट्राइफेजिक. ओके, सो व्हाट इज बेसिकली द, ये जो कंबाइंड है, ये व्हाट इज मीन बाय मोनोफेजिक combination? Monophasic means they contain fixed amount of estrogen plus progesterone. कैसा है ये? Fixed है. This is the fixed amount. Then biphasic. What is mean by biphasic combination? Right? A fixed amount of estrogen
यहाँ पर एस्ट्रोजन फिक्स रहेगा बाइफेजिक्स में, एंड द प्रोजेस्टेरॉन ओके इज इंक्रीजेस। अब ये तुम्हारी साइकिल है 28 डे की टैबलेट, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, एक वीक तो लेना ही नहीं है ओके। सो 1 2 3 4 5 6 7, सो ये मैं कलर कर देता हूं, ये वीक लेना नहीं क्योंकि इसमें ब्लीडिंग हो रहा है, दैट्स व्हाई आई कलर्ड इट विद द हेल्प ऑफ रेड कलर राइट। ये फर्स्ट वीक, सेकेंड हो गया और थर्ड, और ये तो फोर्थ वाला ब्लीडिंग वीक। सो मोनोफेजिक में इस हर टैबलेट में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का जो डोज है वो सेम रहेगा। बट इन केस ऑफ बाइफेजिक, बाइफेजिक में क्या होगा, एस्ट्रोजन इज सेम, लेकिन ये जो प्रोजेस्टेरॉन है, दिस प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीजेस इन सेकेंड हाफ ऑफ साइकिल। क्या इंक्रीज होगा, प्रोजेस्टेरॉन इज इंक्रीजेस इन केस ऑफ सेकेंड हाफ ऑफ द साइकिल, दैट इज इन केस ऑफ बाइफेजिक। ट्राइफेजिक, in case of triphasic, the amount of estrogen may or may not be fixed, थोड़ा सा वेरिएबल रहेगा ट्राइफेजिक में। बट व्हाट अबाउट द प्रोजेस्टीन ओके, while the amount of progestin increases in third not second, कहाँ इंक्रीज करना है, थर्ड। सो देखो मोनोफेजिक में सेम रहेगा, बाइफेजिक में सेकेंड ओके। बाइफेजिक में क्या होता है, इन केस ऑफ बाइफेजिक सेकेंड हाफ ऑफ जो साइकिल है ओके, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसके सेकेंड हाफ में ओके। सो ये पहला हाफ कंप्लीट हो गया, ये सेकेंड हाफ है। सो सेकेंड हाफ में हम लोग बाइफेजिक में डोज इंक्रीज करते हैं और ट्राइफेजिक में थर्ड हाफ में डोज इंक्रीज करते हैं राइट। सो दिस इज विच फेज में आप प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टिन का डोज इंक्रीज कर रहे हो उसको हम लोग बोलते हैं। अगर ये नॉर्मल सेम ही डोज है तो मोनोफेजिक, सेकेंड फेज में कर रहे हो तो बाइफेजिक, और थर्ड फेज ऑफ साइकिल में कर रहे हो तो ट्राइफेजिक। सो दीज आर द वेरियस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन अवेलेबल ऑफ कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। दिस इज द कॉम्बिनेशन, मोनोफेजिक है, दूसरा बाइफेजिक है और तीसरा ट्राइफेजिक है राइट। कितना एफिकेसी है, हाउ इफिशिएंट दिस पर्टिकुलर कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, दे आर हाईली इफिकेसी ओके। उनकी इफिकेसी अगर आप देखोगे तो इट इज लाइक 99.99% दे आर इफेक्टिव फॉर प्रिवेंटिंग द प्रेगनेंसी राइट। यूजर फेल्यूर रेट रहता है, लेकिन ये फेल्यूर रेट टैबलेट का नहीं, यूजर की वजह से फेल्यूर रेट होगा राइट। यूजर ने अगर 3 to 6% फेल्यूर रेट है, यूजर फेल्यूर रेट क्यों रहता है, यूजर फेल्यूर रेट राइट, मे बी द पर्सन मिस द पिल्स, या ठीक से नहीं ले रहे, या उन्होंने बंद कर दिया, दैट इज व्हाई आई सेड इट इज अ यूजर फेल्यूर रेट। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की इफिकेसी का प्रॉब्लम नहीं है, यूजर फेल्यूर रेट विल बी देयर राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द इफिकेसी ओके। इंडिकेशन कब लेते हैं हम लोग, any woman okay who is not desiring the pregnancy okay, तब हम लोग लेते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ये है उसके इंडिकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट है इंडिकेशन कब है, जब उनको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, कॉन्ट्रासेप्शन यूज करना है राइट, when they don't require the pregnancy right. So this is all about your which one, that is called the efficacy case है 99.9%। थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली जो होता है, नॉट रियली द यूजर की वजह से क्या होता है, फेल्यूर रेट रह सकता है। नाउ वी विल सी द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा है, सबसे पहले दिस पिल्स सप्रेस द गोनाडोट्रोपिन सिक्रीशन। हमने देखा है गोनाडोट्रोपिन कहां सीक्रेट होता है, इसको सप्रेस कर देंगे राइट। बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन वो सप्रेस हो जाएंगे। दिस एफएसएच एक्ट ऑन द ओवरीज, देयर इज नो मैच्योरेशन ऑफ फॉलिकल, तो ओवुलेशन होगा नहीं होगा। ये एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। गोनाडोट्रोपिक सिक्रीशन आपको पता है, हाइपोथैलेमस में गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट होते हैं, दे एक्ट ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी, वहां पर एफएसएच रिलीज होगा,
वो FSH इन फीमेल एक्ट ऑन द ओवेरियन फॉलिकल, और ओवेरियन फॉलिकल को प्राइमरी कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी, टर्शियरी और मैच्योर ग्राफेन फॉलिकल बनाते हैं. ओके, अगर इसका सिक्रीशन ही इनहिबिट हो जाएगा तो FSH नहीं होगा, FSH नहीं होगा तो ये मैच्योरेशन नहीं होगा, मैच्योरेशन नहीं होगा तो ओवुलेशन नहीं होगा, राइट. ओवुलेशन नहीं होगा तो ओवा नहीं फॉर्म होगा. दिस इज द मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स. ओके, ये है मेन पहला. सेकेंड, अब ये थोड़े से रिलेटिव मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है. एंडोमेट्रियम जो प्रेगनेंसी के लिए, इम्प्लांटेशन के लिए जो बेड तैयार करता है एंडोमेट्रियल सेल में, वहां एट्रोपी हो जाएगी. ओके, सो ये जो नॉर्मल अच्छा थिकनेस वाला बेड फॉर्म होता है इम्प्लांटेशन के लिए, ये एट्रोपी में चला जाएगा, राइट. सो एंडोमेट्रियल एट्रोपी. सो अगर एंडोमेट्रियल एट्रोपी हो गया तो इम्प्लांटेशन के लिए अच्छा है कि ये नहीं है, राइट. दैट इज द सेकेंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, राइट. थर्ड, जो सर्वाइकल म्यूकस रहता है, जो नॉर्मली इट इज लाइक म्यूकस, थोड़ा सा स्लिपरी रहेगा, राइट. सो इट्स लाइक अ प्रोटेक्शन है, स्पर्म को एंटर नहीं करते फिर भी स्पर्म जाते हैं. दिस सर्वाइकल म्यूकस, ओके, इसका प्रोडक्शन कैसा हो जाता, अभी विस्कस हो जाता. इसकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती, सो दैट इट क्रिएट द बैरियर फॉर द स्पर्म टू एंटर. ये हो गया, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट योर मैकेनिज्म. ऐसे तो बहुत डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ओके, बट मेन इज दिस वन. ओके, सो कुछ बुक्स में ये भी लिखा है कि जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है फैलोपियन ट्यूब में, या सक्शन मेथड है जो यूट्रस का और सर्विक्स का स्पर्म के लिए, वो भी कम हो जाएगा, राइट. सो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स. ओके, कौन से हम लोग देख रहे हैं, कंबाइंड देख रहे हैं. ओके, सो ये हो गया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. अब हम लोग देखते हैं कहाँ हम दे नहीं सकते, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रा इंडिकेशन. कॉन्ट्रा indication. So whenever we talk about the contraindication, there are two type of contraindication. One is called absolute and second is relative. What is absolute mean? Absolute means no. There is no word. नहीं देना है. Relative यानी आप दे भी सकते हैं या नहीं भी दे सकते, लेकिन है थोड़े बहुत. यहाँ 100% है, देना ही नहीं है. रिलेटिव यानी यहाँ पर लाइक 60-70% नहीं देना है, आप 30% में आप थोड़ा सा दे सकते हो. ये हो गया रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशन, राइट. एंड दिस एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन में अगर आपने दिया, देन इट इज नॉट रियली द जस्टिफाइबल, राइट. सो व्हाट आर द एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ दिस कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स? ओके, लेस देन 6 to 8 week, less than 6 to 8 week post delivery. पोस्ट डिलीवरी के बाद, लेस देन 6 to 8 week पोस्ट डिलीवरी. ओके, इफ द चाइल्ड इज ब्रेस्ट फेड, देना ही नहीं है, यहां पर देने की जरूरत ही नहीं, वैसे तो लैक्टेशनल एमनोरिया है. और अगर चाइल्ड ब्रेस्ट फेड है और आप ये हार्मोनल पिल्स दे रहे हो, देन देयर इज अ प्रॉब्लम, ओके, टू द बेबी ऑल्सो, राइट. सो दिस कब नहीं देना है आपको, ये एब्सोल्यूट है, देना ही नहीं है. कब, लाइक एज गुड एज 2 month. डिलीवरी के बाद 2 महीने देना ही नहीं है. ये आपका एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ ओरल कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, राइट. इफ समबडी स्मोकर, उसमें मत दो, राइट. तो ये तो बाकी है लाइक द कॉन्ट्रा इंडिकेशन, राइट. सेकेंड, एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन में आएगा वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म. वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म अगर हिस्ट्री है, बिकॉज दिस हार्मोन एक्ट ऑन अ कोएगुलेशन कैस्केड जो हमारे बॉडी में काम करता है, और क्या करेगा, कोएगुलेशन ऑफ द ब्लड करेगा. बिकॉज ऑफ द रिड्यूस ब्लड सप्लाई, बिकॉज ऑफ द कोएगुलेशन, व्हाट हैपेंड, दैट पर्सन कैन लैंड अप इनटू द DIC और डिसेमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोएगुलेशन. पर्सन माइट बी डाई और दैट फीमेल माइट बी डाई. एंड अगर उसको ऑलरेडी हिस्ट्री है वेनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म. व्हाट इज मीन बाय थ्रोम्बोएम्बोलिज्म? ये वेन है, वेन में यहां पर एक थ्रोम्बस फॉर्म हो गया, राइट. तो
ब्लॉकेज ऑफ सर्कुलेशन हो जाएगा, लेकिन इस थ्रोम्बस में का थोड़ा पार्ट अगर निकल जाएगा बाहर, राइट, और इसको बोलते हैं हम लोग अभी एम्बोलस, और ये एम्बोलस सामने जाकर जहां ब्लॉक कर देगा, राइट. सो दिस इज कॉल्ड वेनस थ्रोम्ब. इट इज लाइक डेंजरस डिजीजेस, राइट. सो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन में 2 months पोस्टपार्टम. सेकंड इज वेनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म. इन केस ऑफ रिलेटिव माइग्रेन में नहीं देते, राइट. ये रिलेटिव में डाल दिया हम लोगों ने, रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन में. अभी क्या है, कुछ नए फॉर्मुलेशन आ गए, सो वी कैन गिव इन द माइग्रेन. पहले एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन में था, अभी माइग्रेन किधर चला गया, रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन में चला गया, राइट. ओके. एब्सोल्यूट में ब्रेस्ट कैंसर है तो आप कंबाइन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं दे सकते. रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन, एक माइग्रेन है, ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, लाइक हाइपरटेंसिव पेशेंट है, राइट. लिवर सिरोसिस है, ओके, लिवर सिरोसिस है, राइट. These are the relative contraindication, right. Or the patient is on certain medication, okay, that medication interact with the oral contraceptive pills, okay. So this is all about your which one, contraindication. So ये हो गया आपके absolute contraindication and relative contraindication, right. There are certain benefit. ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स सिर्फ कॉन्ट्रासेप्शन के लिए बेनिफिशियल नहीं है, कुछ और भी इनके बेनिफिट्स है, ओके. क्या क्या बेनिफिट्स रहते हैं कि rather than contraception, what are the another benefits of oral contraceptive pills? सबसे इंपॉर्टेंट है तो साइकिल का फ्लो रेगुलेशन कंट्रोल में रहेगा, साइक्लिक रेगुलेशन रहेगा, राइट. जो एनीमिया होता है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज मेंस्ट्रुअल फ्लो, वो कंट्रोल हो जाएगा, दैट इज अ गुड थिंग, राइट. एक्नी जो प्रॉब्लम है, ये मिथ है, बहुत लोगों को लगता है कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की वजह से एक्नी हो रहा है. नो, एक्नी को ये सप्रेस कर रहा है बेसिकली, राइट. दैट इज द एडवांटेजेस ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स. और किसको सप्रेस करेगा, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, हिर्सुटिज्म कम करेगा, ये एडेड एडवांटेज है रादर देन कॉन्ट्रासेप्टिव फेल्यूर, राइट. सो अगर कोई ओवरी में सिस्ट वगैरह है, ओवेरियन सिस्ट, उसकी साइज भी बिकॉज ऑफ दिस ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल से कम हो जाएगी, राइट. या बेनाइन ब्रेस्ट सी अगर होगा, हियर ऑल्सो देयर इज अ डिक्रीज इन द साइज ऑफ दैट पर्टिकुलर बेनाइन स्वेलिंग इन द ब्रेस्ट, ओके. सो दीज आर द एडेड एडवांटेजेस, दीज आर द एडेड बेनिफिट्स, और यू कैन से एडेड एडवांटेजेस ऑफ योर विच वन, दैट इज कॉल्ड द ओरल कंबाइन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स. साइड इफेक्ट, अब साइड इफेक्ट तो होना ही नहीं चाहिए, बट देयर आर सर्टेन माइनर साइड इफेक्ट्स, ओके. माइनर साइड इफेक्ट्स कॉमनली ऑकर अगर फर्स्ट फ्यू डेज में, कुछ फर्स्ट कपल ऑफ वीक में और फर्स्ट फ्यू डेज में कुछ साइड इफेक्ट दिखते हैं, राइट. क्या दिखेंगे, थोड़ा बहुत इर्रेगुलर ब्लीडिंग हो सकता है, ये माइनर साइड इफेक्ट में इर्रेगुलर ब्लीडिंग हो सकता है, जिसको ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग बोलते हैं. कौन सा ब्लीडिंग बोलते हैं, इसको ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग बोलते हैं, या स्पॉटिंग भी बोल सकते हैं. बहुत कम ब्लीड होता है जिसको इरेगुलर ब्लीडिंग, दैट इज कॉल्ड द स्पॉटिंग. फर्स्ट फ्यू वीक में होगा, ये धीरे 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 फर्स्ट सेकंड साइकिल थर्ड साइकिल में ये धीरे धीरे कम हो जाएगा, राइट. सेकंड और क्या हो सकता है, ब्रेस्ट टेंडरनेस हो सकता है, टेंडरनेस इन ब्रेस्ट, ओके. ब्रेस्ट टेंडरनेस हो सकता है, राइट. धीरे धीरे इंप्रूव विद द टाइम, ओके. सो अगर ब्रेस्ट टेंडरनेस हो तो एस्ट्रोजन का जो डोज है वो थोड़ा कम कर दो, राइट. सो ब्रेस्ट टेंडरनेस इज बिकॉज ऑफ द एस्ट्रोजन. सम female complain of weight gain also because of the oral contraceptive pills, okay. So it not really related to the weight gain, right. So you cannot really take care, so you should advise them some exercise, right. mood swings वगैरह हो सकते हैं first couple of weeks में, right. so मूड स्विंग में थोड़ा डिप्रेसिव रह सकते हैं, राइट. सो दीज आर द मूड स्विंग, ओके. दीज आर ऑल द माइनर साइड इफेक्ट, दीज आर द माइनर साइड इफेक्ट. एक मेजर अगर आप देखोगे, मेजर कब आएंगे, जब
एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन में अगर आपने इसको यूज किया तो कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, वो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया, वेनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, राइट? सो वेनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म इज 3 to 4 times हायर इन यूजर दैन नॉन यूजर। अगर आपने कंपैरेटिव स्टडी की है, सो जो फीमेल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज करते हैं, ऐसा नहीं कि वेनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म दोनों में हो सकता है, नॉन यूजर में भी हो सकते हैं और यूजर में, लेकिन यूजर में ज्यादा चांसेस है, यूजर में ज्यादा चांसेस है, राइट? एंड दिस वीटी इफेक्ट को अगर आपको कम करना है तो आप क्या करो, एस्ट्रोजन का जो ये है डोज, उसको थोड़ा सा लोअर साइड में रख दो, राइट? सो दिस इज वी कैन सेव, ओके? सो ये हो गया एडवर्स इफेक्ट, वन इज कॉल्ड द वेनस थ्रोम्बोलिज्म। सो ये मेजर में आता है वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। अगर आपने मायोकार्डियल इस्चीमिया के पेशेंट में अगर किया तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है, राइट? सो मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है, ओके? सो दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द इफ वी यूज द कॉम्बिनेशन, और कॉम्बिनेशन में मैंने बोला आपको एस्ट्रोजन का डोज 25 to 50 माइक्रोग्राम होना चाहिए। अगर आपने उससे भी ज्यादा अगर यूज किया एंड पेशेंट इज ऑलरेडी हैव हिस्ट्री ऑफ मायोकार्डियल इस्चीमिया, देयर आर चांसेस ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ओके? सो there is no risk of the myocardial infarction if the dose is in between the 25 to 50 microgram. So ये हो गया myocardial infarction में, right? So बाकी छोटे मोटे है, right? गॉल ब्लैडर डिजीज हो सकते हैं, गॉल ब्लैडर। So combined oral contraceptive pills से क्या होगा, there is an increased secretion of cholic acid. There is an increased secretion of the कोलिक एसिड, जो बाइल में बहुत सारे एसिड है, ओके? उनका सिक्रेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एंड बिकॉज ऑफ इंक्रीज सिक्रेशन देयर माइट चांसेस ऑफ गॉल स्टोन, देयर माइट बी चांसेस ऑफ द गॉल स्टोन, ओके? बट अभी तक लाइक वी डोंट रियली गो थ्रू दिस, ऐसे एडवर्स इफेक्ट बहुत कम मिलते हैं, राइट? सो कुछ बुक्स में ब्रेस्ट कैंसर भी दिया है, बट इट्स स्टिल कॉन्ट्रोवर्शियल। हाँ, ब्रेस्ट कैंसर में हमें ये यूज नहीं करना है क्योंकि ये ऑलरेडी रिलेटिव, दैट इज एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन में है, एंड दैट इज व्हाई पीपल थॉट दैट ओसी पिल्स कंबाइन कॉजेज द ब्रेस्ट कैंसर। नहीं, ब्रेस्ट कैंसर में आप ओसी पिल्स मत दो, राइट? नाउ व्हेनेवर यू आर एडवाइजिंग द यूजेस, you need to counsel the patient. Counseling is very, very important, right? So the women who are using this 21 days combined oral contraceptive preparation, okay, उनको आपको बताना है how to use it. That counseling is very, very important, right? There shouldn't be more than 7 days interval. इससे ज्यादा इंटरवल पीरियड नहीं चाहिए, ओके? सो दैट इंटरवल इज ओनली फॉर द मेंस्ट्रुएशन, राइट? अगर पिल मिस हो गए लेना तो क्या करना है, ये भी काउंसलिंग करना है, राइट? साइड इफेक्ट क्या होते हैं, क्या हो सकते हैं, रिस्क क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट्स क्या है, ये दोनों आपको उनके साथ डिस्कस करना है, राइट? देयर आर सर्टेन मिसकंसेप्शन है, कुछ मिथ्स रहते हैं, वो भी आपको डिस्कस करना है, राइट? कि अगर ज्यादा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के लिए तो बाद में कभी प्रेगनेंसी नहीं होगा, फर्टिलिटी खत्म हो जाएगा, बहुत ज्यादा एक्नी प्रॉब्लम आएगा। सो ये सारे जो मिथ्स है वो आपको उनके साथ डिस्कस करना चाहिए, राइट? जब तक आपको कॉन्ट्रासेप्शन चाहिए तब तक ये कंटिन्यूसली यूज ड्रग है। ऐसा नहीं है कि एक बार यूज कर लिया तो और अभी आपको 5-6 महीने यूज नहीं करना है, राइट? सो दिस इज काउंसलिंग में आपको उनको ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग जो है, जिसको स्पॉटिंग बोलते हैं, इसके बारे में आपको उनको बताना बहुत जरूरी है, राइट? अगर ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग है या स्पॉटिंग है, राइट, सो आपको क्या करना है, एस्ट्रोजन का डोज थोड़ा सा कम करना है, या आप फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन से थर्ड जनरेशन ओरल कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पे शिफ्ट कर सकते हैं, राइट? अगर पिल मिस्ड हो गई, राइट, सो कब लेना है? अगर मिस होगी तो जब रिमेंबर होगा तब ले लो ना। एज सुन एज यू रिमेंबर, दैट मीन्स यू हैव टू टेक 2 pills in 1 day. एक दिन मिस हो गई तो आपको दूसरे दिन, पहले दिन का और दूसरे दिन का पिल लेना है, राइट? अगर आपकी 2 दिन की पिल मिस हो गई, राइट, सो इफ 2 pill in a row is miss, ओके, तो क्या करना है आपको, twice a day लेना है बाद के 2 दिन, ओके? सो 1 2 3 4 5 6 7 ये डेज है। आपका ये पिल मिस हो गया
तो यहाँ आपको 2 पिल लेना है, राइट। आपका 2 दिन मिस हो गया तो यहाँ 3 नहीं लेना है, यहाँ पर 2 पिल्स लेना है और यहाँ पर 2 पिल्स लेना है, राइट, क्योंकि ये हार्मोन का लेवल मेंटेन करना है आपको, राइट। यहाँ आपका ऐसा नहीं कि 3 पिल मिस हो गए तो यहाँ 4 लो, तो ओवरडोज हो जाएगा वहां पर, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द मिस पिल्स, ओके। सो दिस इज द काउंसलिंग। काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और ये अगर कुछ प्रॉब्लम है, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग है या स्पॉटिंग है, तो आप क्या कर सकते हैं, राइट। Sometime you should inform about there is one thing that is called chloasma. What is this chloasma? Darkening of the facial skin. फेस का जो स्किन है वहां पर डार्कनिंग होता है थोड़ा, ओके, दैट इज कॉल्ड कोलेज्मा, राइट। नाउ इफ देयर इज अपीयरेंस ऑफ द कोलेज्मा, यू हैव टू चेंज इनटू अनदर प्रिपरेशन। यू कैन चेंज इनटू द अनदर प्रिपरेशन, राइट। ये एक बार अगर हो गया, इट नॉट रियली और कंप्लीटली डिसअपियर, ओके, चेंज करने के बाद फिर धीरे 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 हो सकता है कम हो जाएगा, राइट। सो दिस इज द थिंग यू शुड एडवाइज और काउंसिल विथ योर पेशेंट, राइट। ब्रेस्ट टेंडरनेस के बारे में या गैलेक्टोरिया, ओके, गैलेक्टोरिया यानी मिल्क, ओके, ब्रेस्ट में से मिल्क आएगा, राइट। सो टेंडरनेस होगा, गैलेक्टेरिया अगर होगा, राइट, तो वो आपको उनको समझाना है, राइट। सो क्या कर सकते हो अगर ब्रेस्ट टेंडरनेस हो गया या गैलेक्टोरिया ज्यादा हो गया, राइट। सो कंटिन्यू यूज, डोंट स्टॉप द यूज ऑफ कॉम्बाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, एस्ट्रोजन का कंटेंट कम कर सकते हैं। इफ समबडी इज ड्रिंकिंग कॉफी तो कॉफी बंद कर दो उनका, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्रेस्ट टेंडरनेस। नॉशिया ज्यादा कॉमन है, राइट, अगर प्रेगनेंसी हो गया, ओके। If they conceive the pregnancy, take the advice of the doctor and avoid the pills. Avoid the pills. Okay, this is very very important, right? Now, combined oral contraceptive pills का metabolism और drug interaction कैसे होता है वो देखते हैं. Now we will see the metabolism and interaction. Okay, in metabolism of इथिनिल एस्ट्रेडियोल पूछते हैं बहुत बार. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज नॉट एट वन साइड, सेवरल साइड्स है इसके. ओके, पहला, दिस इथिनिल एस्ट्रेडियोल, ओके, इज सल्फेटेड है. इसका सल्फेटेड एट इंटेस्टाइनल वॉल. इंटेस्टाइनल वॉल में क्या हो जाएगा इसका सल्फेट ग्रुप. Then second, it is hydroxylated. हाइड्रोक्सिलेशन कहां होगा इसका? लिवर में. कहां हो जाएगा? हाइड्रोक्सिलेटेड इन द लिवर. एंड देन थर्ड, कॉन्जुगेशन. थर्ड इज द कॉन्जुगेशन. कॉन्जुगेशन किसके साथ? ग्लूकोरोनाइड्स. Conjugation with glucuronide in, and then enter to enterohepatic circulation. Okay, so intestinal और hepatic circulation में तो पहले सल्फेटेड होगा, सल्फेशन that is in intestinal wall, फिर hydroxylation in the liver, and then conjugated with that is called glucuronide and enter into the enterohepatic circulation. So ये उसका metabolism है, right? So if you want to take it in a patient who is on anticonvulsant, right? तो एस्ट्रेडियोल का डोज थोड़ा सा आपको कम करना है, राइट. इफ यू आर टेकिंग विथ फिनोटोइन और कार्बामाजेपिन, एंटीकन्वुल्सेंट, फिनोटोइन है, कार्बामाजेपिन है, तो आपको क्या करना है? इथिलीन एस्ट्रेडियोल का डोज थोड़ा सा कम करना है. रिफाम्पिसिन एंड ग्रीजोफेल्विन, ये नोटेड है. रिफाम्पिसिन एंड ग्रीजोफेल्विन कॉन्ट्रासेप्टिव फेल्यूर करता है, ये इंटरैक्ट करता है, दे कॉजेस कॉन्ट्रासेप्टिव फेल्यूर. सो दिस इज वेयर यू कैन नॉट रियली यूज द कॉम्बाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स. ओके, सो ये हो गया आपका पूरा कॉन्ट्रासेप्शन, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में. इन शॉर्ट हम लोग देखते हैं अभी ट्रांसडर्मल कॉन्ट्रासेप्टिव, जो पैचेस है हम लोग जो यूज करते हैं, ट्रांसडर्मल पैचेस. Transdermal patch.
Okay, they usually deliver slow and steady release of that is called estrogen and progesterone, जिसको हम लोग transdermal contraceptive patches बोलते हैं, right? So these are the slow and steady release subcutaneously डालते हैं, that's why it is called transdermal. One patch applied weekly application रहेगा. Okay, one patch that is called weekly applied. Okay, and that is for 3 week, 3 week तक काम करेगा वो, 3 week. Okay, and then last week patch free week रहेगा. Last week is the patch free week. Okay, so एक मंथ में जो 4 वीक है, यहाँ एक पैच लगाना है, फिर सेकेंड वीक में एक पैच लगाना है, थर्ड वीक में एक पैच लगाना है, एंड दिस इज द पैच फ्री वीक. सो दिस इज कॉल्ड ट्रांसडर्मल पैच, जो हम लोग पैच लगाते हैं, राइट? सो इस तरह से स्क्वायर शेप में रहेंगे वो पैच, वो आपको ट्रांस, और उसका ट्रांसडर्मल एब्जॉर्प्शन होगा, ओके, थ्रू डिफ्यूजन, ओके, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है. ओके, सो गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन का सेक्रेशन कम करेगा, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन, ट्रांसडर्मल पैच. इसमें सिर्फ एक एडवर्स इफेक्ट है कि जो ब्रेस्ट सिम्टम्स है, ओके, जो टेंडरनेस रहेगा वो एज कंपेयर टू द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स से ज्यादा रहेगा, और लोकल स्किन रिएक्शन या इरिटेशन हो सकता है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन, ट्रांसडर्मल पैच. डोंट कंफ्यूज बिटवीन ट्रांसडर्मल पैच एंड सबक्यूट इम्प्लांट. पैच यानी आप सिर्फ ऊपर से लगाते हो जो स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा उसमें का ड्रग स्लो एंड स्टेडीली. सबक्यूटेनियस आपको स्किन के नीचे इम्प्लांट करना है, जिसको हम लोग इम्प्लांट बोलते हैं. दिस इज सबडर्मल पैच, नॉट द इम्प्लांट, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन, दैट इज कॉल्ड ट्रांसडर्मल पैच. तो ये हो गया ट्रांसडर्मल पैच. नाउ देयर इज वन मोर मेडिसिन और टैबलेट आई वांट टू डिस्कस विथ यू. अभी कंबाइन हो गई है. अब प्रोजेस्ट्रॉन ओनली पिल्स, दैट इज कॉल्ड पॉप पिल्स, और यू कैन से मिनी पिल्स. इसमें सिर्फ प्रोजेस्ट्रॉन रहेगा, राइट? ये एक साल 1960 में हुआ था, ये 1967. ओके, एंड दिस यूज्ड बाय लॉट ऑफ वुमेन. दे आर हाईली इफेक्टिव. They are also highly effective. इनका मैकेनिज्म ऑफ क्या, एक्शन क्या है? They inhibit the secretion of pituitary gonadotropin. ये क्या करता है? हाइपोथैलेमस की जगह पिट्यूटरी गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, GnRH हार्मोन जो है, ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड के जो भी है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इनका सिक्रेशन क्या करेगा? कम करेगा, राइट? इनका ये प्राइमरी मैकेनिज्म है. So the GnRH released by hypothalamus act on anterior pituitary. Anterior pituitary secrete FSH and LH. ये जो FSH and LH का सिक्रेशन है, इनको इनहिबिट करता है प्रोजेस्ट्रॉन, राइट? और कंबाइन में तो सीधा वहां पर हाइपोथैलेमस में एक्शन होगा, राइट? दूसरी बाकी सेम है इनके एक्शन. इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ म्यूकस, एंडोमेट्रियल एट्रोपी, सेम एक्शन जस्ट लाइक द combined oral contraceptive pills. So ये हो गया आपके प्रोजेस्ट्रॉन ओनली पिल्स. देयर आर सर्टेन इंजेक्टेबल प्रोजेस्ट्रॉन ऑल्सो, जिसको हम लोग डिपॉट इंजेक्टेबल प्रोजेस्ट्रॉन बोल सकते हैं. दे आर कॉल्ड डिपॉट इंजेक्टेबल प्रोजेस्ट्रॉन, जो है डिपॉट मिड्रॉक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसीटेट. एग्जाम्पल इज डिपॉट इंजेक्शन ऑफ मिड्रॉक्सी progesterone acetate. Okay, so we are talking about the progesterone. These are highly effective. These are also highly effective. इनका भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है. जैसे प्रोजेस्ट्रॉन है तो प्रोजेस्ट्रॉन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा रहेगा? सेम ही रहेगा. ओके, सो इंडिकेशन क्या है? ये कब देते हैं इंजेक्टेबल? एनी वुमन सीकिंग लाइक रिलायबल, रिवर्सिबल, ओके, those women who want coital independent, okay, coital independent method for contraception in absence of that is called any other contraindication है, right? या वो कंबाइन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स रेगुलरली वो यूज नहीं कर सकते, राइट? या एस्ट्रोजन को कॉन्ट्राइंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेटेड टू अगर एस्ट्रोजन है,
तो दे कैन यूज, ओके। या एंडोमेट्रियोसिस की पेशेंट है, सो इन दैट दे कैन यूज द डिपॉट प्रिपरेशन ऑफ मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट, ओके। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या रहेंगे? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हो, प्रोजेस्टेरॉन ओनली वाली पिल्स हो या इंजेक्टेबल हो, प्रेगनेंसी इज द कॉन्ट्रा इंडिकेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सीए ब्रेस्ट, ये दो आपको पता ही चाहिए, ये हो गए कॉन्ट्रा इंडिकेशन, राइट। सो दीज आर द कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर डिपॉट प्रिपरेशन ऑफ मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरॉन एसीटेट, राइट। साइड इफेक्ट जो आपके कंबाइन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के वही साइड इफेक्ट रहेंगे, दैट इज कॉल्ड ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग या इरेगुलर ब्लीडिंग हो जाएगी, धीरे धीरे वो कम हो जाएगा, राइट। हार्मोनल साइड इफेक्ट में क्या हो सकता है? नॉशिया हो सकता है, हेडेक हो सकता है, राइट। इंजेक्शन साइड पे पेनफुल, देयर शुड बी अ स्वेलिंग रह सकता है कुछ दिन के लिए, राइट, क्योंकि ये डिपॉट दैट इज कॉल्ड प्रिपरेशन है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन, दैट इज कॉल्ड डिपॉट इंजेक्टेबल प्रोजेस्टेरॉन। सो ये हो गए आपके कौन से, दैट इज कॉल्ड ओरल पिल्स, दैट इज कंबाइंड, एंड ये हो गए आपके दैट इज द सिंगल, दैट इज प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स हो गए, राइट। डोजेज ऑफ डिपॉट इंजेक्टेबल प्रोजेस्टेरॉन, इट इज लाइक 100 to 150 मिलीग्राम इंट्रामस्कुलर देना है आपको। ये इंजेक्शन कैसे देना है? इंट्रामस्कुलर, मंथली, हर मंथ में एक इंजेक्शन देना है आपको 100 to 150 मिलीग्राम इंट्रामस्कुलर आफ्टर एवरी, लाइक यू कैन से मंथ, ओके। और कब स्टार्ट करना है? यू हैव टू स्टार्ट, ओके, मेंसेस के बाद, started during first 5 days of menses, okay। so ये जो first 5 days है 1 2 3 4, ये 5 days जैसे ही खत्म होते हैं तो आपको इंजेक्शन दे देना है, राइट। सो ड्यूरिंग भी दे सकते हैं और 5 days खत्म होने के बाद भी दे सकते हैं। तो स्टार्टेड ड्यूरिंग और एट द एंड ऑफ मेंसेस और विद इन द 5 days, ओके। और यू कैन से विद इन द 5 days ऑफ मेंसेस यू कैन गिव द, दैट इज कॉल्ड द इंजेक्शन। इफेक्टिविटी कब चालू हो जाती है इस इंजेक्शन की? विद इन 24 आवर, विद इन 24 आवर ये काम करने लगता है, राइट। सो दिस इज वेरी गुड मेथड इन केस ऑफ दैट इज कॉल्ड इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। अगर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, अगर कंबाइन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लिए वो भूल गए, राइट, एंड देन देयर इज अ चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी, तो आप ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन में इंजेक्टेबल मेथड यूज कर सकते हैं, राइट। नाउ द पैकेट ऑफ दिस टैबलेट, अगर आप टैबलेट का पैकेट देखोगे, कंबाइंड और प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स के टैबलेट के पैकेज में थोड़ा सा डिफरेंस है। दिस पैकेट कंटेन 28 टैबलेट और वहां कितने थे? 21 टैबलेट, एक वीक में जो नहीं लेना। दिस पैकेट कंटेन 28 टैबलेट। इट कब स्टार्ट करना है? ये जो था कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, ये लास्ट डे ऑफ मेंसेस से स्टार्ट करना था, ये फर्स्ट डे ऑफ मेंसेस से स्टार्ट करना है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन, दैट इज कॉल्ड प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स। दोनों में एक ही इंपॉर्टेंट है, प्रेगनेंसी अगर है तो वो क्या करना है? एक्सक्लूड करना है या रूल आउट और फाइंड आउट करना है, अगर बिफोर स्टार्टिंग द प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स और कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ये हो गया डिफरेंस बिटवीन कंबाइंड and the oral, that is called single, that progesterone only pills. This indication of progesterone only pills क्या है? It can be used only in women where there is a problem because of the estrogen. Estrogen से अगर कोई problem है, then we can use the, that is called the progesterone only pills. So ये हो गया आपका POP. Mechanism of action सारे drugs का same ही रहेगा, right? So increase viscosity of the म्यूकस, सर्वाइकल म्यूकस हो गया, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन को क्या कर देंगे? वो सप्रेस कर देंगे, राइट। ओवुलेशन नहीं होगा, एंडोमेट्रियल एट्रोपी हो जाएगी। दैट आर द सेम एक्शन जस्ट लाइक द कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, राइट। कॉन्ट्राइंडिकेशन सेम रहेंगे, प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट कैंसर रहेंगे, राइट। एडवर्स इफेक्ट में देयर शुड बी अ ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग या स्पॉटिंग। क्या कर सकते हैं हम लोग? अगर ज्यादा पेनफुल ब्लीडिंग हो या स्पॉटिंग अगर हो, सो वी शुड वेट, और यू कैन गिव द non-steroidal anti-inflammatory drug. तो पैच हो गए। There is one more that is called implant. That is called implant. Example of implant is Norplant. It is the Norplant. Okay. So subcutaneously आपको इस तरह से फ्लावर पैटर्न में ये जो 6 सिलिकॉन कोटेड बीड्स आएंगे वो सबक्यूटेनियसली आपको डालना है, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉरप्लांट, ओके। क्या रहेगा इसमें? लिवो
नॉर्गोस्टिरोल। इम्प्लांट में कौन सा है? नॉरप्लांट। नॉरप्लांट में क्या रहेगा? लिवोनॉर्गोस्टिरोल। दिस नॉरप्लांट 6 सबक्यूटेनस रॉड, ओके, दे आर इम्प्लांटेड अंडर द स्किन, और उनकी इफेक्टिविटी 3 to 5 years, बहुत ज्यादा टाइम, राइट, 3 to 5 years है। रिवर्सिबल है। सो आईयूडी के बारे में आपको पता है, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, राइट, सो दे आर नॉट रियली द कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, दे आर द डिवाइसेस। नॉन मेडिकेटेड जो है, जिसको हम लोग लिपेज लूप बोलते हैं, किसी में कॉपर रहता है, नोवा कॉपर टी। कॉपर का काम क्या है? there is a release of copper ion, right, और copper ion क्या करता है? sperm की motility reduce करता है। Last we will see emergency contraception। emergency contraception में copper tea you can be used within 5 to 7 days, 5 to 7 days after unprotected सेक्स। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के यूजेस क्या है? ओके, अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो गया, या अब्यूज है, या रेप है, जहां पर आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करना है, सो यू कैन यूज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। सो 5 या 7 दिन के बाद भी आप उसको कॉन्ट्रासेप्शन यूज कर सकते हैं, दैट इज विद द हेल्प ऑफ कॉपर टी। सेकेंड इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन में रहेगा, दैट इज कॉल्ड यूजुप मेथड। सेकेंड इज दैट इज कॉल्ड यूजुप मेथड। इन यूजुप मेथड देयर आर two doses. There are 2 doses of 100 microgram of ethyl estradiol. How many doses? 2 doses of 100 microgram of ethyl estradiol, and for the most important is 500 microgram of the levonorgestrel. सो 2 doses, किसके 2 doses लेने हैं आपको? 100 माइक्रोग्राम ऑफ इथेनिल एस्ट्रेडियोल एंड 500 माइक्रोग्राम ऑफ लियोनॉर्गोस्टिरोल। इसको हम लोग बोलते हैं यूजुप मेथड ऑफ, दैट इज कॉल्ड इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, ओके। और लियोनॉर्गोस्टिरोल थर्ड है, द लियोनॉर्गोस्टिरोल लाइक 0.75 मिलीग्राम रहेगा उसका जो टैबलेट है। इसके 2 doses, you can use the 2 doses 12 hourly, okay, 2 doses 12 hourly। इसका और इसका एफिकेसी ऑलमोस्ट सेम रहेगा, या इसका डबल कर दो, दैट इज कॉल्ड 1.50 मिलीग्राम सिंगल डोज। सिंगल डोज ऑफ लियोनॉर्गोस्टिरोल लो, या 2 doses of 0.75 milligram लियोनॉर्गोस्टिरोल, दैट इज कॉल्ड द वन ऑफ द मेथड फॉर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। ये यूजुप मेथड है। 2 doses of 100 माइक्रोग्राम ऑफ इथेनिल एस्ट्रेडियोल एंड 500 माइक्रोग्राम ऑफ लियोनॉर्गोस्टिरोल। सो दिस इज ऑल अबाउट योर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है। सो इफेक्टिवनेस अगर आप देखोगे तो यूजुप मेथड इज लाइक 75 to 80% effective, 75 to 80% effective in case of emergency contraception, okay, and levonorgestrel, this method is like 80 to 90% effective method है। सबसे ज्यादा है कॉपर टी, इट इज 98 to 99% effective method for emergency contraception, okay। So this is all about your which one? emergency contraception। emergency contraception के ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछते हैं यूजुप मेथड, कॉपर टी एंड लियोनॉर्गोस्टिरोल। Copper tea is the best method, okay। Thank you। This is all about your which one? That is called contraception। contraception में आपको सबसे important क्या है? oral contraceptive pills।